Loving Father, we praise and thank you, Lord. In your presence there is fullness of joy, and at your right hand there are pleasures forevermore. Now we pray, give thy word in Jesus' name. Shall we turn to Hebrews chapter 11, verse 32, 33 and 34. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 32, 33 और 34 वचन को पढ़ेंगे। And what shall I more say, for the time would fail me to tell of Gideon and Barak and of Samson and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed violent in fight, turned to flight the armies of alliance. अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। Here, first in the list mentioned is about Gideon. यहाँ पर इस सूची में सबसे पहले गिदोन का नाम आया है। So, one thing about Gideon that we find according to the 34th verse, out of weakness were made strong. गिदोन के बारे में एक बात हम 34वें वचन में देखते हैं, निर्बलता में बलवंत हुए। In fact, Gideon was very timid, he was weak and unbelieving also. वास्तव में देखा जाए तो गिदोन कहने से बहुत ही डरपोक होकर, अविश्वासी होकर, निर्बल होकर दिखाई दिया था। However, God made him a great hero of faith. लेकिन परमेश्वर ने उसको विश्वास का एक बड़ा शूरवीर होकर बनाया। No one is born as a hero of faith. विश्वास का शूरवीर होकर किसी ने जन्म नहीं लिया, But God wants to make us heroes of faith. लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास में शूरवीर बनाना चाहता है। When we look at all the weak points of Gideon, we wonder the amazing grace that made him a great hero of faith. गिदोन की सारी निर्बलता के बारे में ध्यान करने से हम इस बात को देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर का कितना अद्भुत अनुग्रह था, जिसने उसको एक महाशूरवीर होकर, विश्वास का शूरवीर होकर बना दिया। He was very timid, fearful. वो तो बहुत ही डरपोक था। Read Judges chapter 6 verse 11. न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय का 11वां वचन पढ़े। And there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Oraph, that pertained unto Joash the Abizarite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योएश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। So, he was fearful because the Midianites might catch him. Therefore, he was hiding from the Midianites and was threshing the wheat near the winepress. वो डरता था कि मिद्यानी लोग उसको पकड़ लेंगे, इस कारण से मिद्यानियों से छिपकर दाखरस के कुंड में जाकर वो गेहूं को झाड़ रहा था। Why did he thresh the wheat by the winepress? उसने क्यों दाखरस के कुंड के पास गेहूं को झाड़ा? That time, Israelites were slaves to the Midianites. क्योंकि उस समय इसराइली लोग मिद्यानियों के गुलाम होकर दिखाई दिए थे। No one was allowed to have vineyards. किसी को भी दाख की बारी रखने की अनुमति नहीं थी। If any Israelites had any grapes, the Midianites will take them. यदि इसराइलियों के पास कोई दाख दिखाई दी तो मिद्यानी उसको छीन लेते थे। In other words, Gideon was threshing the wheat by the winepress because Midianites will least suspect anyone threshing wheat there near the winepress. वो गेहूं को इसलिए दाखरस के कुंड के पास झाड़ रहा था क्योंकि मिद्यानी लोग दाखरस के कुंड के पास कभी कोई गेहूं झाड़ेगा करके सोचेंगे नहीं, वो बहुत ही कम उसके ऊपर संदेह करेंगे। So he was such a fearful person. वो इतना एक डरपोक व्यक्ति था। So many times we read about his fear. कितनी बार हम उसके भय के बारे में देख सकते हैं। When God told him about offering a sacrifice on the altar, he was fearful and he did it at night. Read Judges 6:27. न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय के 27वें वचन में हम देखते, जब परमेश्वर ने उसको बलिदान चढ़ाने के लिए कहा तो वो डरपोक होकर दिखाई दिया, इस कारण से रात के समय उसने बलिदान चढ़ाया। The Gideon took 10 men of his servants and did as the Lord had said unto him,
And so it was because he feared his father's household and the men of the city that he could not do it by day, that he did it by night. तब गिदोन ने अपने संग दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के दृढ़ के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। So he was a fearful man. वो एक डरपोक व्यक्ति था। So many times God spoke to him, but we read in chapter 6 and 7 of Judges, he has so much of fear he had. कितनी बार परमेश्वर ने उससे बात किया था, लेकिन फिर भी न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में हम देखते हैं कई बार वो डरपोक स्वभाव के साथ दिखाई दिया। Now look at again the fear that Gideon had, chapter 7 verse 10 and 11. न्यायों की पुस्तक 7वें अध्याय के 10 और 11 वचनों में देखिए दोबारा गिदोन कितना अधिक भयभीत होकर दिखाई देता है। But if thou fear to go down, go thou with Purah thy servant down to the host, and thou shalt hear what they say, and afterward shall their hands be strengthened to go down unto the host. Then went he down with Purah his servant unto the outside of the armed men that were in the host. परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वो अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। So with all God speaking to him, putting the fleece before the Lord twice, and then angel of God came and spoke, and through the two fleece, God confirmed again that, but still he was fearful. इतना अधिक परमेश्वर उससे बात करने के बावजूद भी वो ऊन को उसने बाहर ओस में डाला। उसके द्वारा प्रभु ने जो उससे बात किया था, स्वर्गदूत ने उससे बात किया, लेकिन फिर भी वो डरपोक होकर दिखाई दिया, ऐसा हम देखते हैं। Look at Gideon, such a man full of fear. God made him a great hero of faith, and he was able to conquer the Midianites, and his name has come in the heroes of faith. गिदोन को देखिए, वो व्यक्ति जो इतना अधिक डरपोक स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको विश्वास का शूरवीर होकर बना दिया। उसने मिद्यानियों पर जय पाई। उसका नाम विश्वास के वीरों की सूची में भी दिखाई देता है। What we read in Hebrews chapter 11, that Gideon, although he was a weak person, out of weakness God made him strong. गिदोन के बारे में इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में 34 वचन में हम पढ़ते हैं, गिदोन इतना अधिक निर्बल होने पर भी परमेश्वर ने उसको निर्बलता में बलवंत किया। In the New Testament there is a man of God who also was full of fear. नए नियम में भी एक परमेश्वर का जन था जो बहुत अधिक भयभीत होकर दिखाई दिया था। But God made him a great man of faith. लेकिन परमेश्वर ने उसको भी एक विश्वास का शूरवीर बनाया। His name is Timothy. उसका नाम तीमुथियुस है। Read 2 Timothy chapter 1, 6 and 7. दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन पढ़े। Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by putting on of my hands. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So Timothy had a spirit of fear. तीमुथियुस के अंदर एक भय की आत्मा दिखाई दी थी। So because of that, he was afraid to use the gifts God has given. और इस कारण से परमेश्वर ने उसके दिए वरदानों को इस्तेमाल करने से वो भयभीत था। Maybe gifts of healings and gifts of prophecy. So Paul says, don't be afraid. Use the gifts God has given you. शायद चंगाई का वरदान होगा, भविष्यवाणी का वरदान होगा, इसलिए पौलुस उसे देखकर कहता है उन वरदानों को इस्तेमाल करने से तू भयभीत न हो। Look at another place. Paul says the same thing. 1 Timothy 4:14. और एक स्थान में हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 14 वचन में भी प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को देखकर यही बात कहता है, Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of hands of the presbytery. उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा तुझे प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। So again, Paul says, stir up the gift God has given you. Don't be afraid. पौलुस दोबारा उससे कहता है, परमेश्वर ने तुझे जो वरदान दिया है उसे इस्तेमाल करने में तू भयभीत न हो, इसके विषय में निश्चिंत मत रहे, लेकिन उसे इस्तेमाल कर। He was sent on transfer to Corinth, उसको कोरिन्थ शहर में बदली होकर भेजा गया, but he was full of fear. लेकिन वो भय से भरपूर था। So Paul specially writes to the Corinthians, when Timothy comes, please make sure that he will be without fear. इसलिए कोरिन्थियों को लिखते हुए प्रेरित पौलुस कहता है,
जब तीमुथियुस वहाँ पर आएगा उस समय उसको भयभीत होने के बिना तो संभाले रहना। 1 Corinthians 16:10. पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय का 10वां वचन। Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord as I also do. यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वो तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वो मेरी नाई प्रभु का काम करता है। See, Paul had to tell the Corinthian church, Timothy is such a timid, fearful boy. When he comes there, make sure that he is without fear. तीमुथियुस इतना अधिक भयभीत स्वभाव वाला व्यक्ति है करके पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को बताना पड़ा और ये भी कहना पड़ा कि जब वो तुम्हारे पास आए तो वो तुम्हारे पास निडर रहे। But now let us look at the wonderful way God changed him. लेकिन अभी देखिए कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको बदल दिया। All the fear gone, in the place of fear, he got boldness. सब प्रकार का भय दूर हो गया, भय के स्थान में उसके अंदर एक बड़ा हियाव आया। He was able to go boldly to the prison also for the sake of Christ. मसीह के निमित्त बड़े हियाव के साथ वो बंदीगृह में भी जा पाया। Read Hebrews 13:23. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 23वां वचन पढ़े। Know ye that brother Timothy is set at liberty, with whom if he come shortly, I will see you. तुम यह जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है और यदि वो शीघ्र आ गया तो मैं उसके पास तुमसे भेंट करूंगा। So he came out in flying colors out of the prison. बंदीगृह से वो विजय के साथ बाहर आया। Obviously he was not timid and crying in the prison. इससे हम समझ सकते हैं कि बंदीगृह में वो रोते हुए डरपोक होकर दिखाई नहीं दिया। What we read in Hebrews 11:34, out of weakness they were made strong. इब्रानियों 11 के 34 में हमने पढ़ा, निर्बलता में वे बलवंत हुए। In other words, दूसरे शब्दों में God wants to make our weakest point in life the strongest point. हमारे जीवन के सबसे कमजोर बिंदु को परमेश्वर सबसे बलवंत बिंदु होकर बदलना चाहता है। See the way God made our physical body. देखिए प्रभु ने हमारी शारीरिक देह को किस प्रकार बनाया है। Doctors say if a bone is broken and if that is healed, that joint where the bone was broken and healed becomes the strongest part there. In case next time if the bone is broken, that will be the last place to break. डॉक्टर्स इस प्रकार कहते हैं, मनुष्य की हड्डी में कोई टूटा ना जाने से वो ठीक हो जाने के पश्चात वो घाव लगा हुआ स्थान सबसे अधिक बलवंत हिस्सा बन जाता है। अगली बार जब वो हड्डी में कहीं टूटन आती है तो पहले टूटा हुआ वो जो स्थान है वो सबसे बलवंत हिस्सा बन जाता है और टूटने के लिए सबसे आखिरी हिस्सा होकर दिखाई देता है। The place it was broken, when it is healed and joined, that becomes the strong. Supposed to be the weakest part of that body becomes the strongest. टूटा हुआ हिस्सा जब जुड़ जाता है तो वो जो सबसे कमजोर हिस्सा होकर पहले दिखाई देता है वो सबसे बलवंत हिस्सा होकर शरीर का बन जाता है। Spiritually also, that is very true. आत्मिक रूप से भी वो ये सच में सत्य होकर दिखाई देता है। Timothy and Gideon, the weakest point was they were fearful. तीमुथियुस के लिए और गिदोन के लिए सबसे निर्बल हिस्सा कहने से उनकी डरपोक स्वभाव था। They were very timid. वे बहुत ही डरपोक थे। But when the grace of God came, they become mighty men of God. लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ तो वे परमेश्वर के लिए शूरवीर बन गए। So, we also in our spiritual life, God wants to do that in our life. हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर हमारे अंदर यही काम करना चाहता है। You may be a weak, timid, sensitive, touchy, moody person. शायद आप बहुत ही निर्बल व्यक्ति होकर, संवेदनशील होकर, डरपोक व्यक्ति होकर दिखाई देते होंगे, जो छोटी से छोटी बात को सहन नहीं कर पाते, ऐसे होकर आप दिखाई देते होंगे। But when the grace of God will come, it changes. परंतु जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा तो वो बदल देगा। Look at Peter. पतरस को देखिए, What was his problem? उसकी समस्या क्या थी? He did not want to suffer. वो कष्ट उठाना नहीं चाहता था। That's why he rebuked Jesus even when Jesus told he will suffer and will be crucified. इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा कि वो कष्ट उठाकर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तब उसने यीशु मसीह को भी उसने डांटा, उसको उलाहना दिया। That's why he denied Jesus, cursed and was swearing the last night. और इस कारण से उस अंतिम रात को हम देखते हैं, उसने यीशु मसीह का इनकार किया और शपथ खाकर उसको धिक्कारने लगा। But when the anointing came, he became different man altogether. He says, harm yourselves.
with suffering. परंतु जब अभिषेक उसके ऊपर आए तो वो और ही मनुष्य होकर बदल गया। वो कहता है कि दुख उठाने की मनसा को हथियार होकर धारण करो। Today you may have some weak point. आज आपके जीवन का कुछ कमजोर बिंदु हो सकते हैं। When the grace of God will come, anointing of God will come, that will become strong point. जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो वो आपके जीवन का सबसे बलवंत हिस्सा बन जाएगा। For the glory of God, with all humility I say, one of the weakest points was anger. परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सारी दीनता के साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे जीवन का सबसे कमजोर बिंदु कहने से वो क्रोध था। So many times I was suspended from the school. कितनी बार मुझे स्कूल से निलंबित कर दिया गया। Lot of problems I had because of anger. क्रोध के कारण मेरे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आई। But by the grace of God, I can say my weakest point became at least one of the strongest points. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कह सकता हूँ, मेरे जीवन का ये जो कमजोर बिंदु था वो मेरे सामर्थ्य का हिस्से में एक हिस्सा होकर बदल गया है। Now even if I want to get angry, I don't know how to get angry. अभी मैं क्रोधित होने के लिए चाहने पर भी कैसे क्रोधित होना है मैं नहीं जानता। Read again verse 34, Hebrews 11:34. इब्रानियों 11 का 34 दोबारा पढ़े। Whence the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong. आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले। Out of weakness where they were made strong. निर्बलता में वे बलवंत हुए। Another weakest point in my life was absolutely no memory. मेरे जीवन का और एक कमजोर बिंदु कहने से मेरे अंदर बिल्कुल भी स्मरण शक्ति नहीं थी। First standard I failed, fourth standard I failed. Hardly I could remember anything. पहली कक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हो गया, चौथी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, किसी भी बात को मैं स्मरण नहीं कर पाता था। How many times if I had to, my mother sends me to the market to buy 2 things, halfway through I come back because I forgot. कई बार मेरी माँ मुझे 2 वस्तुओं को खरीदने के लिए जब दुकान में भेजती थी तो मैं आधे रास्ते में लौट आता था क्योंकि मैं एक वस्तु को भूल जाता था। Now I don't say I have better memory than you, but compared to that when I think, I am amazed how am I able to remember so many things. अभी मैं ये नहीं कहता कि मेरी स्मरण शक्ति आप सबसे अच्छी है, लेकिन फिर भी उस समय से तुलना करके देखे तो मैं अभी कई वस्तुओं को स्मरण कर पाता हूँ। So you may have some weak points in your life. आपके जीवन में कुछ कमजोर हिस्से हो सकते हैं। Like Timothy and Gideon, it may be fear. शायद तीमुथियुस और गिदोन के लिए वो भय होगा। It may be sleeping in prayer, sleeping in Bible reading, or some other weakness. शायद प्रार्थना में सोना या बाइबल पढ़ने के समय सो जाना, ऐसी कुछ न कुछ बात हो सकती है। But we must claim this promise. लेकिन हमें इस वायदे को दावा करना चाहिए। We must claim Hebrews 11:34. इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 34वां वचन को हम दावा करना चाहिए। Maybe some of you, your weakest point may be lust of the eye, lust of the flesh, or pride of life. शायद आप में से कुछ लोगों का जो कमजोर हिस्सा है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा या जीविका का घमंड होगा। But God's word says, out by faith they became strong in the weak point. लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा वह निर्बल हिस्से में भी बलवंत हो गए। You know, every consecration we make, against that the devil will send a demon that we may break that consecration. क्या आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी प्रतिष्ठा करते हैं, एक एक प्रतिष्ठा को हम तोड़ने के लिए शैतान उसके विरोध में एक दुष्टात्मा को भेजता है। Say you are making a decision tomorrow early morning, such a time I am going to get up to pray. उदाहरण के लिए आप एक फैसला करते होंगे, कल भोर सुबह इतना बजे उठ के मैं प्रार्थना करने के लिए उठूंगा। And that night you may go to bed very late because of something, or you may get up when you want to get up in the morning, you cannot get up, severe headache. और हो सकता उस दिन की एक रात पहले शायद आप किसी कारणवश देर रात को सोए होंगे और अगले दिन जब आप उठते तो शायद हो सकता है आप अत्यधिक सिरदर्द के साथ उठते होंगे। It is the devil wants to discourage us, make us to break our dedication. ये शैतान है जो कि हमको निराश करके हमारी प्रतिष्ठा को तोड़ने के लिए प्रयास करता है। You are making a dedication today. I am going to dedicate my father and mother. I am not going to worry about them. And then next information comes, father is serious, come. आज शायद आप प्रभु के सम्मुख में फैसला करते होंगे, मैं अपने माता पिता को स्मरण नहीं करूंगा, आप उनको प्रतिष्ठा कर देते होंगे, लेकिन थोड़े समय के पश्चात ऐसा संदेश आता है कि पिता की हालत बहुत गंभीर है, इसलिए तुम आ जाओ। Every consecration we make before God, the devil may try to
send a demon to break it. हम परमेश्वर के सामने जो कुछ भी प्रतिष्ठा करते हैं उसके विरोध में शैतान एक दुष्टात्मा को भेजता है ताकि हम उसे तोड़ दें। We must fight and stand for the truth. हमें सच्चाई के निमित्त लड़कर खड़े रहना चाहिए। So that is why we read that waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Verse 34. इसलिए 34वें वचन में हम पढ़ते हैं, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। Paul also says, I fought a good fight and kept the faith. पौलुस भी कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और विश्वास की रखवाली की है। You know, God does not want naturally strong people in every sense. हर एक बात में परमेश्वर स्वाभाविक रूप से जो बलवंत है ऐसे लोगों को नहीं चाहता। That is why God has chosen the weak people to make them strong. इसलिए परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुना कि उन्हें बलवंत बनाए। 1 Corinthians chapter 1 verse 27. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 27वां वचन। But God had chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। Why God has chosen the weak people to make them strong for the Lord? परमेश्वर ने क्यों निर्बलों को चुन लिया कि परमेश्वर के निमित्त उन्हें बलवान बनाए। Samson was very strong, of course, through the Spirit of God, but he could never fight against the Philistines and get victory. शिमशोन तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बलवंत था, लेकिन फिर भी वो पलिश्तियों के विरोध में युद्ध करके जयवंत होने में असमर्थ रहा। He could not deliver Israel out of the hands of the Philistines. वो इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ा नहीं पाया। It is true, his strength was in the anointing or in the consecration. ये सच है कि उसका जो अभिषेक था, उसका जो बल था वो उसके अभिषेक में और उसकी प्रतिष्ठा में था। But he could not use that strength for the glory of God. लेकिन वो उस बल को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग नहीं कर पाया। Today you may be weak in holiness. आज हो सकता है पवित्रता में निर्बल होंगे। You may be weak in prayer life. शायद आप प्रार्थना के जीवन में निर्बल होंगे। You may be weak in the meditation of the word of God. शायद परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के विषय में आप निर्बल होकर दिखाई देते होंगे। You may be weak in the love of God. शायद आप परमेश्वर के प्रेम में निर्बल होंगे। You are afraid of suffering for the Lord. शायद प्रभु के निमित्त कष्ट उठाने के विषय में आप भयभीत होते होंगे। There may be some other weak points in your life. शायद हो सकता है आपके जीवन में कुछ और निर्बल हिस्से होंगे। If you believe out of weakness God made them strong, out of your weak point, that weak point God will make strong point in your life. लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे तो आपकी निर्बलता में प्रभु आपको बलवंत करेगा। आपके निर्बल हिस्से में प्रभु आपको बलवंत होने के लिए सहायता करेगा। God told Paul that my strength is made perfect in weakness. परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होगी। In Joel 3:10 we read, let the weak say that I am strong. योएल 3:10 में हम पढ़ते हैं, जो निर्बल हो वो कहे कि मैं वीर हूँ। So every area where we are very weak, God wants to make us very strong. Why? इसलिए जिस जिस हिस्से में हम कमजोर होकर दिखाई देते हैं उसमें प्रभु में बलवंत करने के लिए चाहता है। ऐसा क्यों है? Then only God will get all the glory. तभी परमेश्वर को सारी महिमा मिलेगी। If you are always meek and gentle, never get angry naturally, then that is not in any way, you are not able to praise God because God changed your character or grace of God came. You will not be able to glorify God like that. यदि आप स्वभाव से ही नम्र और शांत होकर दिखाई देते होंगे तो फिर इस विषय में फिर आप प्रभु ने मेरे स्वभाव को बदल दिया ऐसा बोल के प्रभु के नाम की महिमा नहीं कर पाएंगे, उसकी स्तुति नहीं कर पाएंगे, ये कहते हुए कि प्रभु के अनुग्रह ने मुझे बदल दिया। Maybe your weakest point in your life may be in little things you get discouraged. शायद आपके जीवन का कमजोर हिस्सा ये होगा कि आप छोटी छोटी बातों में भी निराश हो जाते होंगे। Maybe your weakest point maybe you cannot take even little rebuke. शायद आपका जीवन का कमजोर बिंदु ये होगा कि आप छोटी सी डांट को भी सहन नहीं कर पाते होंगे। When the grace of God, when the power of God will come, that point will become the strongest point, as I mentioned about broken bone. जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो वो आपके जीवन का कमजोर हिस्सा सबसे बलवंत हिस्सा होकर बदल जाएगा, जैसा मैंने टूटी हड्डी के विषय में आपको बताया। Out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the alien. निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार गिराया। You know during the time of Gideon, the Midianites,
Like the sand of the seashore, millions of soldiers were encamping around them. गिदोन के दिनों में हम देखते मिद्यानियों की जो सेना थी, समुद्र की बालू के समान करोड़ों की संख्या में इस्राएलियों को घेरे हुए थी। A naturally timid, fearful Gideon to become the leader of his army to defeat that great army of millions, it's a miracle. स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति डरपोक होकर दिखाई देता है, करोड़ों की संख्या में दिखाई देने वाले उस सेना का सामना करने के लिए यदि वो सेना का अधिकारी होकर बदल जाता है, वो सचमुच एक अद्भुत बात है। We will be surprised to see from the Bible when God had chosen Gideon and made him a hero. You know what was his spiritual state? बाइबल में हम ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना और उसको एक शूरवीर बनाया, उस समय उसके आत्मिक जीवन की अवस्था कैसी थी? Not only he was timid and fearful, he thought God had forsaken him and the whole nation. न केवल वो कायर और डरपोक था, लेकिन इतना ही नहीं, वो ये भी सोच रहा था कि परमेश्वर ने उसको और सारे देश को भी हाथ छोड़ दिया है। Please read Judges 6 verse 12 and 13. न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracle, which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us, and delivered us into the hands of the Midianites. उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। Obviously, Gideon might have been a depressed person thinking God has forsaken. स्पष्ट रूप से गिदोन सचमुच एक डरपोक दुखी होकर दिखाई दिया होगा कि परमेश्वर ने हमारा हाथ छोड़ दिया है। He could not believe the promises of God. वो परमेश्वर के वायदों पर विश्वास भी नहीं कर पाया। In the 15th verse he says, Oh my God, wherewith shall I save Israel, full of unbelief. 15वें वचन में वो कहता है कि हे परमेश्वर, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं? अविश्वास से परिपूर्ण एक बात। And verse 16 and 17 when we read, when God told her, you will smite the Midianites as one man, he couldn't believe it and asked for a sign. और 16 और 17 वचन में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसको देखकर कहा कि तू एक ही मनुष्य के समान मिद्यानियों को मार डालेगा, तो वो विश्वास नहीं कर पाया। उसके बदले में उसने परमेश्वर से एक चिन्ह को मांगा। From 22nd verse we read, when he realized that it was God who was speaking to him, he thought he was going to die. 22वें वचन से हम देखते हैं जब गिदोन ने सोचा कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, तो उसने सोचा अभी मैं मरने जा रहा हूँ। He had so much of unbelief. From 37 to 39 the verse we read, he put twice the fleece before God to know what it was God who was speaking. वो इतना अधिक अविश्वास से भरपूर था। 37वें वचन से 39 वचन को देखने से वहाँ पर हम देखते उसने 2 बार उस ऊन को बाहर मैदान में रखा ताकि वो जान ले कि परमेश्वर उसके साथ है कि नहीं। Such a man with fear, depression and unbelief, look at the way God made him a great hero, and in the New Testament, Hebrews chapter, among this list here, he comes first. वो इतना अधिक भय के साथ, निराशा के साथ, दुख के साथ दिखाई देने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन फिर भी देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे काम किया। प्रभु ने उसको विश्वास का शूरवीर बनाया और नए नियम में विश्वास के शूरवीरों की सूची में इब्रानी की पत्री 11 अध्याय में उसका नाम सर्वप्रथम आता है। What is the secret for all this? इन सब बातों का रहस्य क्या है? 12th verse we read, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. 12वें वचन में हम पढ़ते हैं कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। When God is with us, that is the greatest thing in our life. जब परमेश्वर हमारे साथ है, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात है। 16th verse again God is saying, and the Lord said unto him, surely I will be with thee. 16 वचन में हम देखते परमेश्वर उससे दोबारा कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। We know God is with us, that is our strength. हम जानते कि परमेश्वर हमारे साथ है, वही हमारा बल है। Such a timid, unbelieving person, God says, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. ऐसे एक डरपोक और अविश्वासी व्यक्ति, इस प्रकार के एक व्यक्ति को देखे परमेश्वर कहता है,
हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। So, when God is great in your sight, you are great in God's sight. यदि परमेश्वर आपकी दृष्टि में महान होकर दिखाई देता है तो आप भी परमेश्वर की दृष्टि में महान होकर दिखाई देंगे। What is our greatness? हमारी महानता क्या है? Our greatness is the nearness to God. हमारी महानता परमेश्वर के साथ की निकटता है। The closer we live with God, the greater God becomes for us and we become great before God. जितना अधिक हम परमेश्वर के निकट होकर दिखाई देंगे उतना अधिक परमेश्वर हमारे लिए महान होकर दिखाई देगा और हम भी परमेश्वर की दृष्टि में महान बन जाएंगे। We read about Joseph, whether in the prison or in the pit. It's written, God was with Joseph and he was a prosperous man. यूसुफ जब उस गड्ढे में दिखाई दिया, चाहे वो बंदीगृह में दिखाई दिया, लेकिन यूसुफ के बारे में कहा गया परमेश्वर उसके साथ था, इस कारण से वो भाग्यवान पुरुष बन गया और यूसुफ हर बात में सफल हो गया। Let us all remember this. Nearness to God is our greatness. हम सब इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर के साथ हमारी निकटता ही हमारी महानता है। When God is great in your sight, you will be great in God's sight. जब परमेश्वर आपकी दृष्टि में महान होकर दिखाई देगा तो आप भी परमेश्वर की दृष्टि में महान होकर पाए जाएंगे। How can otherwise you expect a Gideon who thought God has forsaken him, God has forsaken the people of God, he could not believe the promise of God, how could he become a great hero? यदि बात इस प्रकार नहीं होती तो गिदोन इस प्रकार यही सोचा करता कि परमेश्वर उसको भूल गया है, परमेश्वर ने उसका हाथ छोड़ दिया है, ऐसा अविश्वास के साथ भयभीत होकर दिखाई देता। किस प्रकार से फिर वो इतना बड़े एक शूरवीर बन गया? The Lord is with thee, thou mighty man of valor. हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे संग है। Because God is with you, you are a mighty man of valor. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है इसलिए आप एक शूरवीर सूरमा हैं। Out of weakness they were made strong. वे निर्बलता में बलवंत हुए। Gideon's weakness, Timothy's weakness, all gone. गिदोन की निर्बलता, तीमुथियुस की निर्बलता सब दूर हो गई। Same thing was true about Peter. He didn't want to suffer for the Lord. यही बात पतरस के बारे में हम देख सकते हैं, वो प्रभु के निमित्त बिल्कुल भी कष्ट उठाना नहीं चाहता था। And when we read about David, King David, he was very insignificant person. दाऊद के बारे में हम देखते हैं, पहले तो बहुत ही नगण्य व्यक्ति होकर दिखाई दिया। Even when Samuel came for a special occasion, David was not invited. जब शामुएल एक विशेष अवसर पर आया था, उस समय दाऊद को वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया था। All David's brothers were invited, but David no. दाऊद के सारे भाइयों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन दाऊद को बुलाया नहीं गया। That very person became very special to God. लेकिन वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति होकर बदल गया। So you may have a spiritual weakness. शायद आपके जीवन में कुछ आत्मिक निर्बलता होगी। You may have a physical weakness. आपके अंदर कोई शारीरिक निर्बलता होगी। You may have a moral weakness. शायद आपके जीवन में नैतिक रूप से कोई निर्बलता होगी। It doesn't matter. God wants to make your weakest point strongest point. लेकिन वो आपके लिए कोई समस्या का कारण नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपके निर्बल बिंदु को वो बलवंत बिंदु होकर बदलना चाहता है। God will make the fearful and timid bold and brave for the Lord. जो डरपोक और कायर होकर दिखाई देता है, उसे परमेश्वर के निमित्त हियाव रखने वाला शूरवीर होकर आपको बनाएगा। You are a filthy man. God wants to make you a holy man. In that area, God wants to make you strong. यदि आप एक अशुद्ध व्यक्ति है तो परमेश्वर आपको पवित्र होकर बदलना चाहता है। पवित्रता के विषय में आपको शूरवीर बनाना चाहता है। Out of weakness they were made strong. निर्बलता में वे बलवंत हुए। The angel of the Lord told him, "Go in this thy strength." यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। What was the strength of that man? उस व्यक्ति का बल क्या था? God is with him. परमेश्वर आपके साथ है। The Lord is with us, beloved one. प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे साथ है। So that we don't need another confirmation of fleece from the Lord. इसके लिए परमेश्वर की ओर से हमें ऊन के रूप में कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। Go in this thy strength. You will deliver people of Israel out of the hand of the Midianites. अपनी इसी शक्ति पर जा और तो इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। Our weak points, God will make very strong points. हमारे निर्बल बिंदु को परमेश्वर बहुत ही बलवंत होकर बदल देगा। Let the weak say, "I am strong." जो निर्बल है वो भी कहे कि मैं वीर हूँ। Another version says, "Let the weak say that I am a hero." और एक अनुवाद में इस प्रकार कहा गया है, जो निर्बल है वो कहे कि मैं बहुत शूरवीर हूँ। Shall we close our eyes? आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। God who changed and transformed the Gideon
same God is here. वो परमेश्वर जिसने गिदोन को बदल कर रूपांतर किया, वही आज यहाँ पर उपस्थित है। Not the angel of the Lord, but the Lord himself is in the midst of us. परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में है। Our God is great, so he makes us great. हमारा परमेश्वर महान है, इसलिए वो हमको भी महान बनाता है। Our greatness is the nearness to God. हमारी महानता परमेश्वर के साथ की निकटता है। Believe, let our weak points become strong points. हम विश्वास करें हमारे कमजोर बिंदु बलवंत बिंदु होकर बदल जाए। Let our physical weakness, spiritual weakness, moral weakness become strong points for the glory of God. हमारी शारीरिक निर्बलता, आत्मिक निर्बलता, हमारे नैतिक निर्बलता सब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बलवंत हिस्सा होकर बदल जाए। That is why God has chosen the weak things to confound the strong. इसलिए बलवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुन लिया। By faith receive the strength of the Lord. विश्वास से परमेश्वर के बल को प्राप्त करें। Through the anointing of the Holy Spirit, let us be changed. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम बदल जाएं। Let the weak say I am strong. जो निर्बल है वो कहे मैं वीर हूँ। Let the weak say I am a hero. जो निर्बल है वो कहे मैं एक शूरवीर हूँ। Ura Tikkaramdara, Saramdara, Tikkara, Saramdara. Ura Tikkaramdara, Tikkara, Saramdara Nigina. Amen, 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 amen. Tikkara, Tikkaramdara, Tikkara, Saramdara. Tikkara, Tikkara, Tikkaramdara, Saramdara. Hallelujah. 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ura Tikkaramdara, Saramdara. Ura Tikkaramdara, Saramdara, Rigada Tikkaramdara. Amen, 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 amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Pick it up there. Set up there. Pick it up. God who changed Gideon, Timothy, Peter is the same God we have. Let us praise God. वो परमेश्वर जिसने गिदोन को, तीमुथियुस को और पतरस को बदला, वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. The Lord is changing our weak points into strong points. Let us praise God. परमेश्वर हमारे कमजोर बिंदु को बलवंत हिस्सा होकर बदल रहा है, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Shall we all once again praise God? आइए मिलकर हम सब और एक बार तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. மகிமை நாவினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா, மகிமை நாவினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா, மாறி கண்ணிவை நிறு மகிமையோடு ஈர்த்திடுவோம், மாறி கண்ணிவை நிறு மகிமையோடு ஈர்த்திடுவோம், மகிமை நாவினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா, மகிமை நாவினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா, மாறி கண்ணிமை நிறு
மகிமையோடு ஈர்த்திடுவோம். மாறி தன்னிலை நிறம் மகிமையோடு ஈர்த்திடுவோம். மாறி தன்னிலை நிறம் மகிமையோடு ஈர்த்திடுவோம். மாறி தன்னிலை நிறம் மகிமையோடு ஈர்த்திடுவோம். Hallelujah! 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 Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. 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 Now and until the Lord returns in glory.